नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। 3 दिनों से घर में पड़ा था शव, दुर्गंध निकली तो हुआ खुलासा, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत बागडोगरा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा के भुजिया पानी इलाके में एक घर में 3 दिनों से पड़ा शव बरामद किया। स्थानीय लोगों को जब दुर्गंध आई तो घर में शव होने का खुलासा हुआ। इलाके के राहुल झा नामक व्यक्ति के घर से शनिवार सुबह शव बरामद होने की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान हासीमारा निवासी रामकिशोर गुरुंग के रूप में की गई है। राहुल और रामकिशोर गुरुंग एक ही कमरे में एक दूसरे के दोस्त के रूप में रहते थे। हालांकि 3 दिन पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन राहुल झा ने प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिससे पुलिस को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राहुल झा को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। সকালে আমি খবর পাইলাম যেখানে মার্ডার হয়েছে। তো আমি সকালে এসে দেখতেছি যে মানে গত 2-3 দিন আগেই বুঝি মার্ডার বা মারা গেছে, কোনো ড্রাগস ফ্রাগস নেশা করতো এরা। তো এদের সঙ্গে 2-3 জন বন্ধু বান্ধবও ছিল। তো এখন এসে দেখি যে আমরা মানে পাশাপাশি ঘরে যারা আশেপাশের লোক আছে তারা দেখতেছে গন্ধ। তো গন্ধ হিসাবে ওরা ভাবছে যে এত গন্ধ কিসের। তো ওরা দেখতেছে যে গন্ধ আসছে, যখন তখন দরজা উরজা খুলে দেখে যে একজন ছেলে, ইয়ং ছেলে, 26-27 বছর হবে। তো গত 2-3 দিন আগে আমরা দেখছি এই রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করতো বুঝি সিকিম। ছেলেটার নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ গুরুম। আমরা তো দেখলাম যে তদন্ত করে যে রামকৃষ্ণ গুরুম ওরা। আজকে ওই সাইডের ঘরে যে আছে একটা ছেলের মতোই আমার এখানে বাড়ি। ও বউ বিয়ে করছে, তো ঘরে জায়গা কম আছে, এখানে বাড়ি আছে, দিদির বাড়ি। তো ওখানে ছিল, তো বিয়ে করছে নতুন, এখানে আসছে। তো রাত্রে ওরা ঘুমাতে পারে নাই। তখন আমাকে বলল কি, কাকিমা আমি ঘুমাতে পারি নাই, পুরো গন্ধ হচ্ছে, হ্যাঁ সারা রাত ফ্যান চালালে আরও বেশি গন্ধ করতেছে। তখন আমি বললাম কি, তাহলে ইঁদুর ঠিদুর মরছে হয়তো, আমাদের ঘরে ইঁদুর মরে, অনেক গন্ধ করে ইঁদুরের, আবার ফ্যানটা চালালে ইঁদুর মরাটা গন্ধটা বেশি আসে। তখন ওরা কি করলো, ওই বিজনেস করে তো আর কি, দোকানে দোকানে মাল দেয়। তো ওই কার্টুন ফাটুন ছিল ওগুলি সব বের করলো, ছেলেটা বের করে কোথাও ইঁদুর মরা পাইনি। তো বলে কি, কাকিমা আমি তো এখানে কিছু পেলাম না, দুরন্ত গন্ধ, আমরা থাকতে পারছি না, দুর্গন্ধ। তো ওই ঘরটা একটু দেখো তো। আমি কি দেখো তো, বলে কি এখন আপনি ভাড়া দিচ্ছেন, তো আপনি যদি না যান তাহলে আমরা যেতে পারি না। আর ঘরটা তালা লাগায় না, কোনো সময় খোলাই থাকে, বাইরে দিয়ে ছিটকানি লাগানো থাকে। তো আমি আবার রান্নাঘরটা খুললাম, রান্নাঘরে দেখলাম কিছু নাই, রান্না টান্না করতো না, হ্যাঁ রান্নাঘরে কিছু নেই। তখন আমি ওই ঘরের ওই লকটা এরকম খুললাম, তালা তো নেই, এমনি খুললাম হ্যাজবলটা। তখন ঘরে গিয়ে দেখি কি পুরো মাছি বিনবিন করতেছে, আর কি গন্ধ। আমি কি, বাবা তাপস এটা তো ইঁদুর মরা, ইঁদুর তো আমার ঘরে মরে কিন্তু এরকম তো গন্ধ দেখি না, হ্যাঁ আর এরকম মাছি তো হয় না ইঁদুর মারাতে, আমি যেতে পারবো না বাবা। আমিও ভাগ করে চলে আসছি, দমটা মনে আটকাই যাবে গন্ধতে। তখন ওই ছেলেটা বলে কি, ঠিক আছে কাকিমা আমি দেখি। তখন ওই যে ল্যাপটানো আছে, বলে কি কাকিমা এইগুলি যে ল্যাপটানো আছে আমার তো ভয় লাগে। আমি আবার বললাম কি, ওকে ঘর খালি করতে বলছি, জানলাম তো আজকে ঘর খালির কথা, ওই জন্য মনে হয় কাপড় চোপড়গুলি আর ল্যাপটপগুলি ওরকম করে রেখেছে। তো বলে কি, না কাকিমা আমার শখ হচ্ছে, এখান থেকে গন্ধটা বের হচ্ছে, এই যে কাছে এখান থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। তখন আমি বলি ঠিক আছে চলে আসো। তখন আমি অনিলকে ফোন, ও বলে কি ঠিক আছে আমি আসতেছি। তারপরে অনিল আসলো, তারপরে আবার ওর বাবা, তোর ওই এর বাবা কিন্তু, রাহুলের বাবা কিন্তু ওই তরুণ ঝা, ও আবার এই যে কাজ টাজ করে, উকিলের কাজ করে, হ্যাঁ ওকেও ডাকছি, ওকে ডাকলাম যে আমার তোমার ছেলের ঘর থেকে গন্ধ করতেছে, আমার ভয় লাগতেছে। তখন ও আসছে, ও দেখলো, বলে কি হ্যাঁ এটা কেসটা তো অন্যরকম,
তো ও আবার থানাতে ফোন করলো, তো ওই যে পুলিশ আসলো, তারপর তো আপনারা দেখেনি। सांसद राजू बिस्टा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर दार्जिलिंग के विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जताई नाराजगी, कहा गोरखाओं को लेकर गंभीर नहीं है भाजपा सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई लोगों में खुशी है तो कई अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ये नया मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जहां दार्जिलिंग के बीजेपी विधायक नीरज जिम्बा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से गोरखाओं को लगा है कि बीजेपी उनके मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी के दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्बा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग इस बात से आंदोलित थे कि सांसद राजू बिस्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पत्र में नीरज जिम्बा ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिस्टा को शामिल न करने से पूरे गोरखा समुदाय को निराशा हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी गोरखाओं और उनके मुद्दों के बारे में गंभीर नहीं है। विशेषज्ञों का दावा, धीरे धीरे देश में फ्लू जैसी हो जाएगी कोरोना की बीमारी। हर साल लोगों को लेनी पड़ सकती है वैक्सीन। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जारी है, लेकिन देश के विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ समय बाद कोविड-19 महामारी इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू की तरह हो जाएगी। इसके साथ ही बोला गया है कि इससे बचने के लिए हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख सिमरन पांडा ने कहा कि कुछ समय के बाद कोरोना वायरस एंडेमिक स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह हमेशा एक निश्चित आबादी या क्षेत्र में मौजूद रहेगा, लेकिन यह सामान्य बुखार जैसा हो जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वायरस का रूप बदलना, म्यूटेशन एक सामान्य बात है और इनमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 500 से ज्यादा भाजपा समर्थकों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। अलीपुरद्वार जिले में भाजपा नेता व समर्थकों के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच अलीपुरद्वार जिले की कालचिनी सावित्री धर्मशाला में राजा भातखावा ग्राम पंचायत और मालांगी ग्राम पंचायत के करीब 500 भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने उन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। आप लोगों के प्रति नतमस्तक रहूंगा कि आप लोगों ने जो भी समझे कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए आप लोग ममता दीदी को मजबूत कराना चाहते हैं, टीएमसी को मजबूत कराना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग जो आए हैं टीएमसी में सभी को वेलकम और सभी को बंगाली बोले भालोबासा, नेपाली में माया, सबसे पहले धीरे धीरे माया वेलकम, सभी से भी बहुत बहुत प्रेम। आप लोग आए, आइए हम लोग मिलकर काम करेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई जोश से नई उमंगे लिखेंगे हम नई कहानी। इसी बात को बढ़ाते हुए सभी को मैं कहूँगा आइए मिलकर काम करेंगे। मेरा वीरेंद्र बाला साथ में है, साथ में असीम बाखरीन जी हैं, राम कुमार जी हैं, जितने भी मेरे मंच में असीम मेरे इंदु बहन जी हैं, सभी को लेके बाबू सुबह मेरे भाई है, दोस्त हैं, सभी को आप लोगों को लेके हम लोग चलेंगे और कालची में नया इतिहास लिखेंगे। ऐसा ये उम्मीद कर चलते। लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है, अभी जिस तरह आप लोग सोच समझ के आए हैं कि मन में मेंटली बना के आए हैं कि मैं मरूंगा भी टीएमसी में, जीऊंगा भी टीएमसी में। तो लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering
from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घंटों तक लाइन में खड़े होने के बावजूद नहीं मिली वैक्सीन, मायूस होकर घर लौटे लोग। भारत भूटान सीमा पर बसे जयगांव गुलाबी देवी भवन में सुबह 4 बजे से दोपहर तक 10 से 12 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद वैक्सीन नहीं मिलने पर क्षुब्ध होकर लोगों ने मायूस होकर अपने घर लौट गए। जयगांव विकास प्राधिकरण द्वारा जयगांव गुलाबी देवी भवन में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन शिविर लगाया है। वैक्सीन मिलने की उम्मीद में लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े होने लगे, पर दोपहर में अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि जिन लोगों को मोबाइल पर मैसेज मिला है उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। लोगों ने शिकायत की है कि हमने 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीन सेंटर के बाहर भी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इस बारे में जयगांव विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भूषण शेरपा ने कहा कि जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनके मोबाइल पर कल मैसेज के माध्यम से इस बारे में सूचित किया गया है। आज फिर लगी पेट्रोल डीजल के दामों में आग। जनता महंगाई से हैरान परेशान, आक्रोश का माहौल। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल की कीमत 26 से 28 पैसे बढ़ी, जबकि पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी। बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार कर गई। मुंबई में कई दिनों से पेट्रोल शतक लगा चुका है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डीजल 89.88 और पेट्रोल 100.91 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है।
मुंबई में डीजल 97.46 और पेट्रोल 106.93 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में डीजल 92.97 और पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में डीजल 94.39 और पेट्रोल की कीमत 101.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती है। देश में एक बार फिर कोरोना से मौतों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटों में 1206 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटों में 42,766 नए मामले सामने। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। शनिवार को कोरोना से होने वाली मौतों में एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटों में 42,766 नए मरीज मिले और 1,206 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके एक दिन पहले 43,393 नए मरीज आए थे और 911 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।